UPSC CMS 21 paper second. Question number 41. Ideal weight gain during pregnancy for a woman with normal BMI should be. तो आंसर इज 11 to 16 kg. यदि वुमेन ओबेस होती तो इसके लिए वेट गेन होता 6 to 8 kg नॉर्मल वेट गेन होता है प्रेगनेंसी. और यदि वुमेन थिन है तो उसके लिए आइडियल वेट गेन होता है 16 to 18 kg. Question number 42. Blood volume increase during pregnancy above non-pregnant level at 30 to 34 week. तो आंसर इज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है बाई 40 to 50%. बाई 42. आंसर इज सी. इन प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज बाई 40 to 50% and RBC increase only 20 to 30%. So blood volume increase more than RBC, so hemodilution happen, so RBC concentration decrease. RBC number increase but RBC concentration decrease due to blood volume increase more than RBC. Hemoglobin concentration also decrease. Oxygen carrying capacity also decrease. All clotting factor in pregnancy increase. सारे clotting factor increase होते हैं except factor 11 and factor 13 which decrease in pregnancy. फैक्टर इंक्रीज होंगे जो कि PPH को प्रिवेंशन का काम करते हैं. लिविंग लाइगेचर ऑफ प्रेगनेंसी. इसके अलावा WBC काउंट also increase in pregnancy. Erythropoietin level also increase in pregnancy. This is all about physiological changes in pregnancy. Question number 43. Which of the following are contraindication for external cephalic version in antenatal management of breech presentation? तो external cephalic version के contraindication कौन कौन से हैं? First, APH, antepartum hemorrhage. Yes, it is contraindication for external cephalic version. Cause of APH is abruptio placenta previa. Other cause polyp, cancer, fibroid, vasoprevia and idiopathic. It is goal of APH. Second is multiple pregnancy. Also contraindication of external cephalic version. Third is reactive non-Strass test. मतलब non-Strass test is normal. No fetal distress present. So external cephalic version can be done. कर सकते हैं इसमें reactive में. Fourth is severe oligohydramnios. तो इसमें severe oligohydramnios मतलब amniotic fluid index डिक्रीज हो गई तो इसमें अपन एक्सटर्नल cephalic वर्जन नहीं कर सकते, तो ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. तो आंसर इज 1 to 4. आंसर इज 1 to 4. क्वेश्चन नंबर 44. Antepartum hemorrhage is defined as bleeding from genital tract after period of viability and before birth. Period of viability कब होता है? After 20 week of pregnancy. तो आंसर इज आफ्टर 20 week of pregnancy. APH. Cause of APH is abruptio placenta. Second is placenta previa. Third is polyp, cancer, fibroid, vasoprevia and idiopathic cause.
क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लैम्सिया? प्रीक्लैम्सिया के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है। प्रीमिग्रेविडा रिस्क फैक्टर होता है। ओबेसिटी ऑल्सो रिस्क फैक्टर फॉर प्री इक्लैम्सिया। प्री एग्जिस्टिंग वेस्कुलर डिजीज भी इसके लिए रिस्क फैक्टर होता है। प्लेसेंटा प्रीविया रिस्क फैक्टर नहीं होता, तो आंसर इज प्लेसेंटा प्रीविया। लेट्स टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर ऑफ प्री इक्लैम्सिया। फर्स्ट इज प्रीमिग्रेविडा in vitro fertilization pregnancy, teenage, elderly, pre-existing vascular disease or renal vascular disease, hypercoagulable condition and disease like SLE, Apla syndrome, and protein C and S deficiency. High HCG condition like molar pregnancy, multi gestational pregnancy या multifetal pregnancy, RH incompatibility and Down syndrome. High estrogen condition like PCOS, obesity and family history. This is all cause of all risk factor for preeclampsia. Primigravida, IVF pregnancy, teenage, elderly, pre-vascular disease, renal vascular disease, hypercoagulable condition like SLE, Apla and protein and CS deficiency, high HCG condition and high estrogen condition, all risk factor for preeclampsia. Question number 46, what are Spiegelberg criteria for diagnosis of ovarian pregnancy? तो ovarian pregnancy के लिए Spiegelberg criteria is 4 होते हैं. First, tube on affected side must be intact. Yes. Second is gestational sac must be in the position of ovary. Yes. Gestational sac is connected to uterus by ovarian ligament. ये भी right. Ovarian tissue must be detected on the wall of histological examination. ये भी right. तो answer is 1, 2, 3, 4. These all 4 are criteria of ovarian pregnancy is Spiegelberg criteria. Question number 47, which one of the following statement regarding fetal well-being is not correct? fetal well-being के बारे में not correct नहीं है. सबसे पहले daily fetal movement count is simple reliable method for fetal well-being, ये तो correct है. mother pursue 88% of fetal movement, ये भी correct है. healthy fetal tissue have minimum 10 movement in 12-hour period, ये भी correct है. Second is modified biophysical profile include non-stress test plus fetal breathing, ये wrong, तो आंसर इज बी. करेक्ट कौन सा नहीं है? बी. मॉडिफाई एक होता है बायोफिजिकल प्रोफाइल, दूसरा होता है मॉडिफाइड बीपीपी बायोफिजिकल प्रोफाइल. बायोफिजिकल प्रोफाइल में नॉन स्ट्रास टेस्ट के साथ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, फीटल ब्रीथिंग, फीटल मोमेंट, फीटल टोन, ये चीजें देखते हैं. जबकि मॉडिफाइड बीपीपी में ओनली 2 चीजें देखते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्लस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. तो क्या क्या आएगा इसमें? नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्लस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 48, which of the following statement are correct respect to antenatal USG examination? First, it help in detecting gross fetal anomalies. Yes, right. It help in identifying multiple pregnancy. Also right. It help in identify viable pregnancy. ये भी सही है. Best dating is possible with third trimester ultrasound scan. No, ये wrong हो गया. जो dating scan होता है वो बेस्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. किसमें होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है बुकिंग स्कैन.
बुकिंग स्कैन। और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है ग्रोथ स्कैन, जो होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेस्टेशनल एज कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट पैरामीटर होता है क्राउन रंप लेंथ। सेकेंड ट्राइमेस्टर या बुकिंग स्कैन, सेकेंड ट्राइमेस्टर या बुकिंग स्कैन में अपने कंजेनाइटल एनोमलीज वगैरह का पता लग जाता है। और इसमें जेस्टेशनल एज का लिए बेस्ट पैरामीटर होता है BPD बाई पेराइटल डायमीटर। ग्रोथ स्कैन में जेस्टेशनल एज के लिए तो होता है फीमर लेंथ, फीमर लेंथ। बट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर होता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। तो आंसर इज राइट इज 1 2 3, राइट आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन सप्लीमेंटेशन इज नीडेड फॉर। तो प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंटेशन ऑल प्रेग्नेंट मदर फ्रॉम 16 वीक ऑन, राइट आंसर इज बी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं देते, आयरन अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, इसलिए अपन सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। द क्लिनिकल फीचर ऑफ फिजियोलॉजिकल इडिमा इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट इज प्रेजेंट ऑन बोथ लोअर लिम्ब यस एंड एब्डोमेन नो, एब्डोमेन पे प्रेजेंट नहीं होता, ये बोथ लोअर लिम्ब के साथ साथ बोथ लोअर लिम्ब में भी कहाँ पे होता है, ओनली लेग पे होता है, ओनली लेग एंकल एंड फिट, लेग एंकल एंड फिट पे प्रेजेंट होता है। इज सेकंड इज एसोसिएट विथ कार्डियक एंड रेनल पैथोलॉजी, नो फिजियोलॉजिकल एडिमा, नो एसोसिएट एनी पैथोलॉजी। तो ये फिजियोलॉजिकल एडिमा होती है जिसमें लोअर लिम्ब वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस होता है, वो ग्रेविड यूट्रस पार्सली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है वीना हवा को, इसलिए प्रेशर इंक्रीज होने के कारण, वीनस प्रेशर इंक्रीज होने के कारण एडिमा होती है। इसमें कोई कार्डियक या रीनल पैथोलॉजी नहीं होता फिजियोलॉजिकल एडिमा। थर्ड इज यूजुअली ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर ग्रेड, नो इट इज माइल्ड ग्रेड। तो फर्स्ट थ्री आर इनकरेक्ट। फोर्थ डिसअपियर ऑन मार्कली रिड्यूस ऑन रेस्ट, यस ये इट इज राइट आंसर, रिड्यूस रेस्ट पे डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, द नॉर्मल रेट ऑफ डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इन प्राइमा ग्रेविडा इन एक्टिव फेज ऑफ लेबर। तो प्राइमा ग्रेविडा में डायलेटेशन के लिए रेट होती है नॉर्मली 1 to 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, तो आंसर इज 1 सेंटीमीटर पर आवर। और मल्टी ग्रेविडा में रेट होती है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 52, इन द मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर द इंगेजिंग ट्रांसवर्स डायमीटर इज, तो आंसर इज बाई पेराइटल डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर पूछा है तो क्या हो गया, बाई पेराइटल डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम हेज, ये कोलेस्ट्रम फर्स्ट इज फैट कंटेंट, ये हो गया कोलेस्ट्रम का, और इधर हो गया ब्रेस्ट मिल्क, इधर हो गया ब्रेस्ट मिल्क। फर्स्ट बात करते हैं अपन फैट कंटेंट की। कोलेस्ट्रॉल में फैट कंटेंट होता है 2.3, जबकि ब्रेस्ट में फैट कंटेंट होता है 3.2। तो हायर फैट कंटेंट होता है कि कोलेस्ट्रॉल में, नो लोअर फैट कंटेंट होता है, तो ये रॉन्ग। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। कोलेस्ट्रॉल में कार्बोहाइड्रेट होता है 3.2 और ब्रेस्ट मिल्क में होता है 7.5। तो हायर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ना, ये होता है लोअर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। थर्ड इज हायर प्रोटीन कंटेंट। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की बात करें तो 8.6, जबकि ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन होता है 1.2, तो कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन हायर होता है। अब वाटर कंटेंट की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में वाटर होता है 86 और ब्रेस्ट मिल्क में होता है 87, तो इसमें लोअर होता है, तो आंसर इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 54, इन लैक्टेटिंग मदर आफ्टर डिलीवरी ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन होता है 4 वीक में, अगर एज अर्ली एज 4 वीक, तो आंसर इज बी।
नॉन लैक्टेटिंग मदर। नॉन लैक्टेटिंग में क्या होता है, ओवुलेशन होता है 4 वीक एंड इसके 2 वीक के बाद में मेंस्ट्रुएशन होता है। तो क्या देगा मेंस्ट्रुएशन के लिए 6 वीक। तो ओवुलेशन एंड ये हो गया मेंस्ट्रुएशन। तो लैक्टेटिंग में अदर में ओवुलेशन लगभग 10 वीक और मेंस्ट्रुएशन इसके 2 वीक बाद में 12 वीक। दिस इज द ऑल अबाउट। Question number 55. Which of the following are prerequisite of outlet for sex delivery? Bladder should be empty, yes. Membranous should be intact, no. membrane तो rupture होनी चाहिए. Cervix should be fully dilated, yes. Fetal skull has raised level of pelvic floor. तो ये भी right. तो answer is 1, 3, 4. Answer is 1, 3, 4. Answer number C. Question number 56. The vaginal pH in चाइल्ड बियरिंग एज नॉर्मली रेंज बिटवीन, तो होता है ये एसिडिक होता है, तो एसिडिक में भी कौन सी रेंज होती है 4 to 5.5। आंसर नंबर इज सी। चाइल्ड बियरिंग एज में एस्ट्रोजन के इफेक्ट में मैच्योर सेल होती है, मैच्योर सेल इन वेजाइना। मैच्योर सेल में क्या होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड बेसलाई में वो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, किसके प्रेजेंस में, डोडरलिन बैक्टीरिया, और इसी के कारण एसिडिक पीएच रहती है वेजाइना। एस्ट्रोजन के इफेक्ट में मैच्योर सेल इन वेजाइना, मैच्योर सेल में ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन चेंज हो सकता है लैक्टिक एसिड में डोडरलिन बैक्टीरिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 57। The Gartner duct cyst is usually located, तो आंसर इज एंटीरोलेटरल वॉल ऑफ वेजाइना। गार्टनर डक्ट सिस्ट होती है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट की रेमेनेंट। तो क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्स डिफरेंशिएशन इन चाइल्ड मीजोनेफ्रिक एंड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट प्रेजेंट, बोथ प्रेजेंट, but in absence of SRY gene or Y chromosome female development or paramesonephric duct develop, so mesonephric duct is regress, sometime mesonephric duct remain present, it is Gartner duct or cyst called Gartner duct cyst. The answer is anterolateral wall of vagina. Question number 58. Endometrial sampling for diagnosis of ovulation is done on which day of menstruation cycle? तो endometrial sampling होता है वो 21 to 23 days। अगर यदि एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग में उसकी स्लाइड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यदि इसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में लॉन्ग ट्यूबुलर फॉलिकल्स प्रेजेंट हुए तो ओवुलेशन, तो कौन सी स्टेज है, फॉलिकुलर स्टेज, तो ओवुलेशन एब्सेंट। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में अगर पेरीन्यूक्लियर हेलो के साथ कोइल्ड ग्लैंड दिख रही है तो ये हो गया सिक्रेटरी फेज या अर्ली सिक्रेटरी फेज, इसमें ओवुलेशन प्रेजेंट। बट ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम हाइपर कोयल ग्लैंड
या कॉर्क स्क्रू ग्लैंड एंड स्ट्रोमल इडिमा प्रेजेंट। तो ये होती है लेट सिक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम, लेट सिक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसमें ओव्यूलेशन भी प्रेजेंट है। और तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एंडोमेट्रियल सैंपलिंग लेके क्या क्या दे सकते हैं। फर्स्ट लॉन्ग ट्यूबुलर ग्लैंड हो तो वो प्रोलिफेरेटिव फेज होती है एंडोमेट्रियम की, जिसमें ओव्यूलेशन अभी एब्सेंट होता है। जबकि यदि कोइल्ड ग्लैंड दिखे और पेरिन्यूक्लियर हेलो दिखे तो अर्ली सिक्रेटरी फेज, और हाइपर कोइल या कॉर्क स्क्रू शेप तो ये लेट सिक्रेटरी फेज। क्वेश्चन नंबर 59, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कैन बी ट्रीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन, यस। साइक्लिक combined estrogen and progesterone preparation, yes. Pre-secular neurotomy also done. Uterine curettage, no. Uterine curettage, no importance in primary dysmenorrhea. The answer is 1, 2, 3. The answer is 1, 2, 3. 59 का answer is 1, 2, 3. Question number 60. Which one of the following is correct regarding obesity and infertility? तो obesity में क्या होता है? obesity में होता है एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज। ओबेसिटी में एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है क्योंकि ओबेसिटी में पेरिफेरल कंवर्जेशन से एस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है। और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को कम करेगा, FSH एंड LH को डिक्रीज करवाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाइपोगोनेडिज्म। तो आंसर इज फर्स्ट, इट इज एसोसिएटेड विथ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। क्वेश्चन नंबर 61 रॉन्ग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ GnRH डिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। फर्स्टली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेस देन 8 ईयर और menstruation happen less than 10 year in female. This is called precocious puberty. Cause of precocious puberty, cause, central cause और GnRH dependent. Second is peripheral cause जो कि होता है GnRH independent. Central cause of precocious puberty is constitutional, most common constitutional. Secondary, primary hypothyroidism. Third is intracranial lesion like trauma, tumor and infection. तो इट इज सेंट्रल कोज या GnRH डिपेंडेंट कोज, कॉन्स्टिट्यूशनल, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, इंट्राक्रैनियल लीजन। सेकंड इज पेरिफेरल कोज या GnRH इंडिपेंडेंट कोज। फर्स्ट, या तो ये एस्ट्रोजन इंक्रीज होने के कारण या एंड्रोजन इंक्रीज होने के कारण प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ रही है। जैसे ओवेरी में ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर हो गई जहाँ पे एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, लीडिंग सेल ट्यूमर हो गई, एंड्रोब्लास्टोमा हो गया, मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम, तो ये भी पेरिफेरल में आता है मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी प्लस पॉलीओस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया एंड कैफे ओलेट स्पॉट। लीवर में हिपेटोब्लास्टोमा, इसके कारण भी प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो सकती है, या इट्रोजन। तो ये कोज हो गए प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, GnRH डिपेंडेंट और GnRH इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
Which of the following are cause of GnRH dependent precocious puberty? तो GnRH dependent constitutional yes, tubercle encephalitis yes, इंट्राक्रेनियल रीजन को देखना कि इंट्राक्रेनियल रीजन में कोई भी ट्रॉमा हो जाए या ट्यूमर हो जाए या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो वो सेंट्रल कोज होगा। मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम ये होता है पेरिफेरल कोज या GnRH इंडिपेंडेंट कोज। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इज सेंट्रल कोज या GnRH डिपेंडेंट। तो आंसर इज 1 2 4। आंसर इज 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 63. Which one of the following is the most important hematological condition to rule out while investigate a case of puberty menorrhagia? तो फर्स्ट रूल आउट कोगुलेशन प्रोफाइल, कोगुलेशन डिसऑर्डर। सबसे पहले कोगुलेशन डिसऑर्डर ही रूल आउट करते हैं कि मेनोरेजिया के लिए ब्लीडिंग को कोज सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64. A couple present to OPD with complaint of inability to conceive for last 3 years. Husband was advised semen analysis. What is the WHO criteria for minimum sperm count per ml in normal semen? तो आंसर इज पर ml में कितना होना चाहिए? 15 मिलियन या 15 मिलियन होना चाहिए। तो WHO के अनुसार 1 ml में 15 मिलियन स्पर्म होना चाहिए, जबकि पर इजेकुलेशन में 1.5 ml वॉल्यूम होना चाहिए एंड 39 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। स्पर्म की कंसंट्रेशन या पीएच 7.2, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज 40% मोटाइल होने चाहिए और उसमें भी 32% एक्टिव मोटाइल होने चाहिए। 4% मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, 4% की मॉर्फोलॉजी 4% और विएबिलिटी 58% स्पर्म। दिस इज द ऑल अबाउट WHO क्राइटेरिया ऑफ स्पर्म काउंट। क्वेश्चन नंबर 65. Which of the following are risk factor for developing pelvic inflammatory disease in female? First is use of oral contraceptive is no, ये रिस्क फैक्टर नहीं होता। यदि एब्सेंस ऑफ ओसीपी होता तो ये रिस्क फैक्टर होता। यूज करना प्रोटेक्टिव होता है पीआईडी के लिए। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ये रिस्क फैक्टर है। लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आल्सो रिस्क फैक्टर। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर पीआईडी। अदर रिस्क फैक्टर इज आईयूडी यूजर्स, menstruating टीनेज, ये रिस्क फैक्टर होते हैं। तो आंसर इज 2 3 4। आंसर इज 2 3। पीआईडी क्या होता है? पीआईडी होता है इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन अपर जेनाइटल ट्रैक्ट लाइक एंडोमेट्रियम, ओवेरी, fallopian tube and peritoneum surrounding. This is the PID. Let's talk about question number 66. A 65-year-old postmenopausal lady present in gynecology OPD with abdominal distension, weight loss. On investigation, she was diagnosed to ovarian tumors. The most common type of ovarian tumor in women are, तो आंसर इज एपिथेलियल ट्यूमर। मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सी होती है? एपिथेलियल ट्यूमर होती है वुमेन में। क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिक्स सिंड्रोम इन ए फीमेल? मिक्स सिंड्रोम में क्या होता है? मिक्स सिंड्रोम के लिए ट्राइड होता है जिसमें राइट साइड प्लूरल इफ्यूजन, इसके साथ साथ एसाइटिस और इसके साथ फाइब्रोमा या फाइब्रोमा के अलावा ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, थीकोमा या ब्रेनस ट्यूमर, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो राइट साइड हाइड्रोथोरेक्स, एसाइटिस एंड तीसरा फाइब्रोमा ओवेरी। तो आंसर इज 1 2 4। आंसर इज 1 2 4 मिक्स सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 68. A 25-year-old girl present to the gynecology OPD with complaint of abdomen pain, heavy menstruating bleeding with mass arising from the hypogastrium corresponding to 6-week gravid uterus. Her urine pregnancy test is negative. The most likely diagnosis is, तो इसमें यूपीटी नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी तो एब्सेंट है। इसके अलावा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है, उसके साथ एब्डोमेन पेन हो रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें लाइन है 16 वीक ग्रेविड यूट्रस। तो आंसर इज फाइब्रॉइड यूट्रस, क्योंकि फाइब्रॉइड यूट्रस में 20 वीक तक आ सकता है यूट्रस ग्रेविड। क्वेश्चन नंबर 69.
A 39-year-old nulliparous female has present to the gynecology OPD with complaint of post-coital bleeding for past 6 months. The first investigation is offered to this female. First, talk about post-coital bleeding cause is cervicitis, cervical polyp, ectropion of cervix, prolapse, and cervical cancer. This is the cause of post-coital bleeding. So first investigation always is pap smear. Question number 70. Procedencia as a degree of uterovaginal prolapse is characterized by descent of uterus into vagina, no. Uterus cervix outside vagina but uterine body inside vagina, no. Uterus cervix below the cervix, no. Uterus cervix body with fundus outside vagina with eversion of entire vagina. The right answer is D. Right answer is D. Question number 71. Which of the following are indication of vaginal examination during labor? First, to stretch the vagina intermittently, no. स्ट्रेच करना कोई इंडिकेशन नहीं होता. एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, यस, ये इंडिकेशन होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन का. टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ये भी इंडिकेशन होता है. फॉलोइंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी इंडिकेशन होता है. तो आंसर इज 2, 3, 4. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 72. Which one of the following statement regarding RH isoimmunization are correct? First, Lilly chart identify anemia better than middle cerebral artery Doppler, no. Best anemia detector in fetus is middle cerebral artery, no. Second is indirect comb test is positive in mother, yes. इनडायरेक्ट comb टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी मदर के सीरम में. एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर सीरम या मदर के प्लाज्मा में. सेकंड इज बेबी इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग एनीमिया, यस, आइसोइम्यूनाइजेशन में रहता है. थर्ड इज डायरेक्ट होम टेस्ट इज पॉजिटिव इन बेबी. डायरेक्ट होम टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब एंटीबॉडी बेबी की एंटीबॉडी दैट स्टक बेबी आरबीसी, बेबी की आरबीसी पर एंटीबॉडी आ गई तो इसका मतलब डायरेक्ट होम टेस्ट पॉजिटिव. इनडायरेक्ट होम टेस्ट पॉजिटिव कब होगा? जब एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर सीरम या मदर प्लाज्मा. तो आंसर इज 2, 3, 4. 2, 3, 4 ये हो गया RH आइसोइम्यूनाइजेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 73. एज पर ICMR गाइडलाइन which of the following are criteria for SARS-CoV-2 exposure for a pregnant female during COVID-19 pandemic? Travel to affected country within previous 14 days, yes. Close contact with confirmed case within a distance of 1 meter for more than 15 minutes, ये भी right answer. Living in neighborhood of a confirmed case, no, ये रिस्पेक्ट करेंगे. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी फ्लूइड ऑफ कंफर्म केस, यस. तो इनमें अपन क्या कर सकते हैं? क्वारंटाइन कर सकते हैं. तो आंसर इज 1, 2, 4. आंसर इज 1, 2, 4. क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ सेप्टिक अबॉर्शन? सेप्टिक अबॉर्शन में टेकिकार्डिया हो जाता है, मेंटल स्टेटस इंपेयर हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है. तो ऑल ऑफ दीज. आंसर नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 75. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस देयर इज ऑलवेज ओलिगोहाइड्रोमियाज, नो, रॉन्ग. फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के अदर कोज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ना कि ओनली एक ओलिगोहाइड्रोमियाज ही होता है. इसका कोज अदर कोज जैसे यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो गया, इसके अलावा कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो गए या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गई. तो ये भी IUGR के या फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के कोज हो सकते हैं. हमेशा ये ओलिगोहाइड्रोमियाज हो ये जरूरी नहीं है. ओलिगोहाइड्रोमियाज का कोज है तो ऑलवेज नो. In fetal restriction, there is placental insufficiency lead to the redistribution of blood. Fetal brain shunt it from fetal kidney. Yes. Statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect. So answer number is D. Question number 76. 76 question is wrong. 76 question is wrong. Consider the following in respect of ormeloxifene. It is research product of CDRC
CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, तो ये राइट आंसर है। CDRI है। और मेलोफेक्सिन को अपन सेंट क्रोमेन या इसकी होती है सहेली के नाम से भी जाना जाता है, सहेली के नाम से भी जाना जाता है। कैसे लेते हैं इसको? इनिशियल फर्स्ट 3 मंथ तो इसको वीक में ट्वाइस इन वीक, फिर अगले नेक्स्ट 3 मंथ लेना है इसको वंस वीक में एक बार। तो फर्स्ट इज राइट, इट इज स्टेरॉयडल कंपोनेंट, नो इट इज नॉन स्टेरॉयडल है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट। इट इज पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन विथ वीक एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी, यस। इट डज नॉट इनहिबिट ओव्यूलेशन, यस। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करता। फिर किसको इनहिबिट करता है? ये इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूल, फर्टिलाइज ओव्यूल का इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। तो आंसर इज 1, 3, 4, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 78, स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल इन बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर इज मोनोफेजिक, आंसर इज मोनोफेजिक। मोनोफेजिक किसको बोलते हैं? जैसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनकी डोज सेम रहती है कंप्लीट साइकिल में सेम रहती है। जैसे 21 days इज 1 pill, देन 7 day रेस्ट, उसको बोलते हैं मोनोफेजिक, जिसको जो कि चॉइस होता है कॉन्ट्रासेप्टिव। बाइफेजिक में क्या होता है? बाइफेजिक में इथाइल एस्ट्राडायोल प्लस लियोनोर्गेस्ट्रोल, जिसमें इथाइल एस्ट्राडायोल की डोज को सेम रखते हैं पर लियोनोर्गेस्ट्रोल की डोज हाफ टाइम बाद में बढ़ा देते हैं। इनिशियल 40 days डोज कम होती है और अगले 40 days डोज बढ़ा दिया, तो इसको बोलते हैं बाइफेजिक। 2 फेज हो गए, इनिशियल 40 डोज और नेक्स्ट 40 days के लिए डोज अलग अलग होती है। ट्राइफेजिक में क्या होता है? 3 बार, 1 to 6 day इथाइल एस्ट्राडायोल तो 30 मिलीग्राम और लियोनोर्गेस्ट्रोल 0.05 मिलीग्राम। तो ये तो LNG, ये इथाइल एस्ट्राडायोल। फिर अगले 7 to 11 days इथाइल एस्ट्राडायोल 40 मिलीग्राम एंड लियोनोर्गेस्ट्रोल 0.075 मिलीग्राम। नेक्स्ट 12 to 21 days इथाइल एस्ट्राडायोल 30 मिलीग्राम एंड लियोनोर्गेस्ट्रोल 0.125 milligram. This is the triphagic. Let's talk about question number 79. Which of the following are absolute contraindication of combined oral contraceptive? First is arterial and venous thrombosis history, yes. Severe hypertension also contraindicated. GTN gestational trophoblastic neoplasia, no, ये contraindication नहीं है oral contraceptive के लिए. Diabetes with vascular complication, yes, ये also complication है। तो आंसर इज 1 to 4, आंसर इज 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 80, आफ्टर मेल स्टेलाइजेशन एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन इज तो इस इज नीडेड फॉर 2 to 3 months, आंसर इज सी।